Good morning to all of you and welcome back. We were in the middle of discussing curve refraction, especially with respect to virtual objects, isn't it? So I hope now the concept of virtual object is done. So like you must be now comfortable. तो इस चैप्टर में मेनली यही सब चीजें हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना? So let's begin by discussing what would happen. Let's say if the two refracting surfaces. Now see, we discussed yesterday about two refracting surfaces, isn't it? But yesterday what we discussed was that they were separated by some distance. This was the case. Now the question is that what would happen? What would happen if, let's say, they become very close? Which means that the separation between these two surfaces is very less. So let's say they become like this. So then we call it as a lens. So therefore what we did yesterday can be, no problem with that, can be called as a thick lens. And what today we are going to discuss is about a thin lens. That's the difference. So yesterday we were discussing thick lens, today we are going to discuss a thin lens. Now what is the specific thing about a thin lens, isn't it? So we'll just start discussing that. In the meanwhile, there are messages. Good morning. Pratyaksh, Rohan, Kartik, Khushi, Rohanveer, Kush, Shivam, Manan Dakwal, Dhruv, Akshit is there on the line. Anshu also. चलो. So like thin lens में क्या होगा देखो कि जरा सोचो इसमें क्या होगा. First refraction का मान लो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है? If the second surface is, let's say, here, if the second surface is here, suppose refracting surface, suppose बोल रहा है इसलिए मैंने डॉटेड बनाया. सपोज अगर यहाँ पे होगा तो इन दैट केस क्या होगा, हम कितने डिस्टेंस का वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेंगे. कल भी यही किया था, कल भी याद है ना, वो कुछ 25 कुछ आया था और ये 10 था तो लाइक 15 लेके हमने सॉल्व किया. क्यों? उतना माइनस कर, लॉजिकली सेंस बनता है. तो बट लेट्स से okay, I was knowing something that I would be anticipating and it happened, and that is as pointed out by Dhruv, and that is क्या आज के पासवर्ड में 1 नहीं था, हमेशा 1 लगाते हो. ये कमेंट इंटरेस्टिंगली कल 11th के बैच में भी ये सेम चीज सुनने को मिला. इधर आपके पासवर्ड में 1 तो जरूर रहता है. तो मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, फॉरएवर 1 ना रख के फॉरे चेंज कर लेते हैं, फॉरएवर की जगह फॉरे चेंज. तो इसलिए आज रखा गया है. कितना है, क्या था, 2233 आई थिंक, है ना? हाँ, तो वो चीज है. ठीक है ना? चलो लेट्स कैरी ऑन. What I was saying was that if the second refracting surface is here, then this becomes the virtual object distance for the second refraction. लेकिन अगर second refraction यहीं पे हो जाता है, in that case पहले वाला image distance अगर v होता है तो हमारे लिए object distance क्या हो जाएगा second का, v minus t, where t is the thickness of lens. That's what should be done logically. I think that's clear. v हो गया, t thickness हो गया और v हो गया, तो v minus t करके हम लिख सकते. लेकिन जरा सोचो अगर t बहुत कम हो जाए तो, now you might say क्यों, बताया ना, thin lens. So what we are discussing is very thin lens. So therefore v minus t can be approximated as v. Why? Because t is very less. ठीक है ना? This is another suggestion and that is from Divyam, and that is कि हाफ ईयरली रिजल्ट आप ही दे दो, स्कूल तो दे नहीं रहा है. स्कूल भी दे देंगे 1-2 दिन में, ठीक है ना? मैंने बोला ना कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे क्लासेस, तो कोई 1-2 सब्जेक्ट पे भी अटक जाता है तो इन दैट केस थोड़ा सा टाइम लग जाता है.
और कुछ ऐसे हुआ कि मे बी एक आध सब्जेक्ट अटक गया होगा, इस वजह से हुआ होगा, बट एनीवे आई थिंक इट्स ड्यू नाउ, यू विल ऑल गेट इट। ठीक है ना। बट हाफ ईयरली का जो मेन पॉइंट्स है वो तो डिस्कस हो गया है, मैंने सोल्यूशन भी दे ही दिया है, तो लाइक मस्ट हैव सीन दैट। तो आई थिंक कितना मार्क्स मिलना चाहिए, आई एम श्योर यू मस्ट हैव बाय नाउ अंडरस्टूड योरसेल्फ। थोड़ा सब्जेक्टिव का रहता है, उसमें मे बी और गेस विल गो रॉन्ग बाय अराउंड व्हाट 2-3 मार्क्स, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे, तो इतना तो चलता है। ठीक है ना, चलो एनीवे ओके। दिव्यांश से इसकी उनको तो सिर्फ फॉरवर्ड करना है, समझे नहीं, फॉरवर्ड करने के स्टेज पे थोड़ी अटका है, अटका है बिकॉज मान लो कोई एक सब्जेक्ट का मान लो पेपर्स कुछ रह गया। अच्छा, कईयों का तो मिसिंग पेपर्स भी थे, तो वो ढूंढने में टाइम लग रहा है कि भाई इतने सारे इसके अंदर कहाँ पे उसका पेपर है, ये सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट अदर रीजन कुड बी। ठीक है, चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। तो लाइक सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए कायदे से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए v, सॉरी v माइनस टी, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली v लिखेंगे। ठीक है ना, नाउ दैट इज व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन इन अ लेंस। फाइन, तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे एक और पॉसिबिलिटी भी है, और वो है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और मान लो इसका इमेज डिस्टेंस ये हो गया वर्चुअल इमेज, ये v हो गया, तो अगर सेकेंड रिफ्रैक्शन सरफेस यहाँ पे है, इन दैट केस इसमें जो u लेना चाहिए वो क्या होगा, अगर ये t है मान लो, इन दैट केस v प्लस t। बट वही बात है ना कि अगर पहला रिफ्रैक्शन से रियल इमेज बनता है, और ध्यान से सुनना, पहला रिफ्रैक्शन से अगर रियल इमेज बनता है, इन दैट केस सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए रियल इमेज डिस्टेंस माइनस। और अगर पहला वाले में रिफ्रैक्शन में अगर वर्चुअल इमेज बनता है, लेट्स से वर्चुअल इमेज, तो इन दैट केस सेकेंड रिफ्रैक्शन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना चाहिए वो है v प्लस। आई थिंक दैट्स ओके, बट वही बात है कि t अगर छोटा होता है तो v माइनस टी को भी मैं अप्रोक्सीमेटली v ले सकता हूँ, और v प्लस टी को भी अप्रोक्सीमेटली, यानी इस सरफेस के लिए जो u बनेगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट v, यानी नेट नेट रिजल्ट ये मिल रहा है कि अगर थिन लेंस होगा, in that case second diffraction. So therefore the main point that we are going to discuss in case of thin lens is that in case of thin lens क्या होगा, the object distance of second refraction is equal to, or rather ये मेन चीज हो जाएगी। ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस of second refraction will become approximately equal to the image distance of first refraction. ये हो जाएगा crux of the matter, बस that's it। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है इसको जनरलाइज करता हूँ, कैसे ना, एक काम करता हूँ, सपोज मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेता हूँ μ2, और ये μ1 हो गया, ये भी μ1, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो मैं एक काम करता हूँ, जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का इमेज डिस्टेंस है उसको मैं लिख देता हूँ सपोज इक्वल टू v1, बिकॉज़ आई नो दैट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट आंसर है और उसके बाद आगे जाके फाइनल आंसर आने वाला, तो इसलिए मैं इसका तैयारी कर रहा हूँ। तो देयरफॉर इन दैट केस क्या होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के मैं कि μ2 by v1 minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r1। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2, ये हो गया पहला वाला। सेकेंड रिफ्रैक्शन, so that is the final one। सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या होगा, देखो μ2 by v, लेकिन μ2 क्या होता है ना,
रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम। तो अगर मैं सेकेंड रिफ्रैक्शन देखता हूँ तो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम ये है, जो कि एक्चुअली क्या है, μ1 है। ये देखो साइड का μ1 है। तो देयरफॉर फार्मूला में, सो लेट मी राइट डाउन द फार्मूला फर्स्ट। फार्मूला इज μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। बट इस फार्मूले में पुट क्या करूंगा, देखो μ2 की जगह μ1 पुट होगा, क्योंकि μ2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो फाइनली इस चीज सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में जा रहा है, यानी μ1 हो गया। तो यानी μ2 की जगह पुट करूंगा मैं μ1, और v तो पता नहीं, यही निकालना है, माइनस μ1। μ1 मतलब होता है इंसिडेंट रे, तो इस वाले सरफेस पे इंसिडेंट रे यहाँ पे ट्रैवल करता है, व्हिच इज एक्चुअली व्हाट, μ2। ये देखो μ2 वाला, therefore minus μ2 by u। u मैंने क्या बोला कि यहाँ का जो u होगा वो यहाँ का v के बराबर है, और उसको मैंने v1 लिखा था, है ना। यानी लिखूंगा v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 फॉर्मूला में तो है, लेकिन मेरा μ2 इस बार μ1 है और मेरा μ1 μ2 है, यानी मैं लिखूंगा μ1 माइनस μ2 बाय, ये हो गया रेडियस कर्वेचर r बाय r। ये हो गया। अगर मान लो दोनों को कंबाइन करते हो तो इन दैट केस कैसे लिखना चाहिए उसका एक रिप्रेजेंटेशन। देखो कायदे से ये तो लिखना चाहिए यहाँ पे एज v1 माइनस टी, पर उन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि मैं v1 माइनस टी क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेटली v1 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज, तो अब एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 2, और एक काम करो दोनों को ऐड कर दो, है ना। एडिंग 1 and 2, एक काम करो वहां पे जगह है, एडिंग 1 and 2, है ना। एडिंग 1 and 2 क्या होगा ना, ये देखो v1 वाला तो कैंसिल हो गया, तो μ1 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r1। मैं काम करता हूँ, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो, देखते यहाँ पे r1 आएगा, और ये स्वैप करने पे माइनस आता है, तो यानी माइनस 1 by r। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by μ1 into 1 by r1 माइनस 1 by r। अब जरा क्लास 10th को रिकॉल करो, क्लास 10th को रिकॉल करो तो क्या आया था ना, 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। ये जो हम लोग 1 by f करके शॉर्टकट कर देते थे ना, वो 1 by f एक्चुअली ये वाला एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट्स द 1 by f वाला पार्ट। तो यही होता है वो, ये जो क्वांटिटी है ना, ये 1 upon f, ठीक है ना। तो यानी अगर मैं चाहूं तो इसको फोकल लेंथ के फॉर्म में लिख सकता हूं, आपको इसको बता सकता हूं। तो मैं इसको फोकल लेंथ के फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट देयरफॉर फोकल लेंथ जो आता है ना वो 1 by f दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by μ1 into 1 by r1 minus 1 by r। तो करेक्ट भी लिख सकते हो, तो मर्जी है, यानी f हो जाएगा इक्वल टू 39 मैंने जो r1 r2 mu by mu1 by mu2 minus mu1 into r2 minus r। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना इज दैट while putting values use
साइन कन्वेंशन। मतलब ये जो म्यू 1 म्यू 2 में तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता है, लेकिन R1 R2 वगैरह है जिसमें साइन कन्वेंशन पे वो है, ठीक है। इनफैक्ट मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इज दैट आई होप यू हैव कॉपीड ऑल दिस थिंग्स। मैं एक जनरल सवाल पूछना चाहूंगा इज दैट I would like to ask a general question and that is ये लेंस कौन सा है? Which lens is this? ये लेंस कौन सा? I'm asking a general question and that is ये लेंस है कौन सा? Okay, कार्तिक says कि ये डिपेंड करेगा। Okay, Akshay also says the same thing कि ये डिपेंड करता। Satyam also says the same thing. अनिरुद्ध चैटर्जी it seems कि जानबूझ के बताया कन्वेक्स। हाँ चलो, anyway let's come back to the point. The thing is that ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज एक काम करो, ये एक लेंस है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता हूँ R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसका R2 हो गया 30 सेंटीमीटर, है ना। और μ1 इज इक्वल टू 5/2 और μ2 इज सपोज इक्वल टू 4/3। Find out the focal length and nature of the lens. Find focal length and nature of this lens. जल्दी करो। नेचर मतलब तुमको बताना है कनकेव या कन्वेक्स, जो भी है, that is what you have to say. अक्षय राज की μ3 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी मैं आऊंगा उसमें। देखो हमने जो डिस्कस किया था, ओके, रचित दास की ये फोकल लेंथ μ2 माइनस μ1 बाई μ1 कैसे आ गया? एक्चुअली देखो मैंने क्या किया, जो 10th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, 10th में हमने पढ़ा था ना लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये तो 1/v माइनस 1/u तो एकदम बिल्कुल सेट है, तो 1/f हो गया ये पूरा पार्ट। तो हमने इसको इक्वेट किया, ठीक है ना, हमने उसको इक्वेट किया तो ये मिल गया कि ये भाई 1/f हो गया। तो देखो पूरा एक्सप्रेशन उठा के मैंने डाला।
तो F को तो जस्ट पलटना ही था, तो म्यू1 R1 R2 ये आ गया, और इधर R2 माइनस R1 और उधर म्यू2 माइनस म्यू1, तो लाइक पलटने के बाद ये आ गया. सो देयर इज नथिंग अनयूजुअल है. द ओनली कंसर्न इज दैट इसका नेचर क्या है ना, कार्तिका सेट इट इज अ कनकेव लेंस. बिल्कुल बात सही है, इसका लेंस कनकेव होगा. नहीं बट अभी तक आपने सॉल्व तो किया नहीं है, पता कैसे चला ना? देखो ये जो लेंस होता है ना, बल्जिंग टाइप ऑफ लेंस, इसका इंटरेस्टिंगली 1/R1 माइनस 1/R2 हमेशा पॉजिटिव. बट अभी रुको, ये जो मैं कह रहा हूं ना 1/R1 माइनस 1/R2, चाहे ऑब्जेक्ट इधर रखो चाहे ऑब्जेक्ट उधर रखो, दोनों जगह पॉजिटिव हो. क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो तो ये इंसिडेंट रे हो, तो ये R1 हो, तो R1 बिकम्स पॉजिटिव, ये इंसिडेंट रे हो, और R2 नेगेटिव है. लेकिन अच्छी बात है ना ये तो, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए 1/R1 माइनस 1/R2, तो R1 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस और R2 नेगेटिव, देन ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी क्या हो गया, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव. So therefore 1/R1, sorry, therefore 1/R1 minus 1/R2 is positive. अच्छा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट उस तरफ रखते हो, ऑब्जेक्ट अगर इधर रखोगे तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, तो फिर ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, और देखो सेम चीज आ रहा है, R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव. चलो वो तो उस डायग्राम के लिए था, बट देन क्योंकि एक ही चीज है, देन क्या होगा, सेम रिजल्ट. यानी एक चीज को समझो, क्लास 10th में हमने जिस लेंस को कन्वेक्स बोला था, वो कन्वेक्स जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक खासियत होगा, पता है क्या, कि 1/R1 माइनस 1/R2 हमेशा पॉजिटिव. यानी अब इसको समझो, इसका मतलब उसका जो साइन होगा फोकल लेंथ का, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय 1/R1 माइनस 1/R2, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव. चाहे ऑब्जेक्ट इधर रखो चाहे ऑब्जेक्ट उधर रखो, तुम्हारे सामने एक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हो. अब रहेगा साइन, उसका कैसे डिसाइड होगा फिर, म्यू2 और म्यू1. यानी अब मैं डिसाइड करूंगा कि इस टाइप के लेंस में क्या होगा ना, अगर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 हुआ तो कन्वेक्स. क्यों? देखो ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो यानी ओवरऑल भी पॉजिटिव हो गया, तो इन दैट केस क्या होगा, कन्वेक्स हो जाता है. एक और रिजल्ट याद रखना, कन्वेक्स कनकेव शेप से डिसाइड नहीं होता है. मैं फिर से बता रहा हूं, कन्वेक्स और कनकेव शेप से डिसाइड नहीं होता है. जैसे ये सामने लेंस जो मैंने दिया ना, ये कनकेव हो, इसको मैं थोड़ी देर बाद रे डायग्राम भी बनाऊंगा. और एक चीज ध्यान रखना, कनकेव कन्वेक्स डिसाइड होता है फोकल लेंथ के साइन से, तो इसलिए मैंने डबल स्टार देके लिखा है क्या, कि इफ F इज पॉजिटिव दैट इंप्लाइज इट्स अ कन्वेक्स. शेप पे मत जाना, जैसे ये अभी देखना कनकेव निकल आएगा. कैसे बता रहा हूं मैं, अभी मैंने क्या बोला कि अगर इस टाइप का शेप होता है तो ये वाला क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है. और देखो जरा म्यू2 क्या दिया मैंने, म्यू2 दिया 4/3 और म्यू1 क्या दिया 5/2, यानी इज इट वायलेटिंग दिस, है ना, ये वाला हाँ ये वाला, तो यानी म्यू2 लेस देन म्यू1 क्या हो जाएगा, तो F इज पॉजिटिव मींस कन्वेक्स. तो बाकी काउंटर पार्ट बोलने का जरूरत तो नहीं, बट चलो कोई नहीं, कह दे, कहने में क्या जाता है. If F is negative, that would be concave. Actually, क्या ना देखो, Arindam, I'm getting a point. Is that sorry, Anirudh, I'm getting a point, but the thing is that एक लेंस के जो टर्मिनोलॉजी होता है, कन्वेक्स कनकेव जनरली हम लोग उसके फोकल लेंथ पे ही छोड़ते हैं, ठीक है ना. तो वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग वो सिमिलर तरीके से उसको बोला जाता है, ठीक है ना. दैट्स ऑल. तो देयरफॉर एक काम करता हूं मैं, इसका फोकल लेंथ अब निकाल ही लेता हूं. इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/F is equal to म्यू2 4/3 minus म्यू1 5/2 by म्यू1 which is again 5/2 into 1/R1 20 minus 1/R2 minus 30 is equal to, आ जाएगा 8 minus 15, तो 7 minus 7/6
into 2/5 into 63 plus 2, ये पूरा 5 हो गया, तो 5 पूरा इससे कैंसिल हो, 2 से 3 कैंसिल कर, यानी फोकल लेंथ आ गया -180/7। That is concave lens. So it behaves like a concave lens. ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रे डायग्राम हुआ, इंटरेस्टिंगली इस लेंस का जो रे डायग्राम होगा, इस लेंस का जो रे डायग्राम होगा वो ऐसे होगा। This is the focal length and it will turn out to be negative. Rachit has asked now is that फिर ये concave convex का definition क्या? मैंने पहले ही बोला ना कि concave convex आप shape देख के हम नहीं बताएंगे, अब हम बताएंगे इसको देख। क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव है ना, तो therefore negative में concave, then it is behaving like a concave lens and therefore it will actually diverge, rays will diverge। तो जितना भी लेंस के डाइवर्जिंग वाला चाहे चीज था वो यहाँ पे जो है वैलिड, ठीक है ना, इट्स लाइक दैट। Okay, so that was about your lens, I mean, and Akshit has also asked कि इसका वो क्या होगा अगर मान लो 3 मीडियम्स होंगे, है ना, तो भी मैं बता रहा हूँ। अभी जो मैंने बताया वो था 2 मीडियम के लिए, कि लेंस का एक अपना मीडियम होगा और सराउंडिंग पूरा एक ही मीडियम। अब मैं बताने वाला हूँ 3 मीडियम के लिए, ठीक है, ये भी नोट कर लो। अच्छा, बाय द वे R1 R2 में भी ध्यान रखना, कन्वेंशन है, जो मर्जी R1 R2 नहीं होता है। इंसिडेंट रेज पहला जिस सरफेस को स्ट्राइक करता है उसको R1 बोले, तो अगर इधर से इंसिडेंट रेज आ रहा है तो आई एम एज्यूमिंग कि इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, तो इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे। बट ये कोई जरूरी तो नहीं कि ऑब्जेक्ट उधर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इधर हो, तो दैट केस इंसिडेंट रे यहाँ पे आएंगे, तो दैट केस ये R1 माना जाएगा और वो R2 हो जाएगा। तो R1 R2 का भी कन्वेंशन है कि इंसिडेंट रेज पहली बार जिस सरफेस को स्ट्राइक करता है उसका रेडियस को R1 लिया जाए और दूसरी बार जिसको स्ट्राइक करता है उसको R2। यानी R1 R2 क्या हो गया? R1 is the radius of the surface where incident ray strikes first and then obviously by default R2 दूसरा होता है। ये भी ध्यान रखना, ये छोटे छोटे चीजें जो है क्वेश्चन में मैटर करेंगे। यानी पीछे वाला लेंस जो है कनकेव लेंस का बिहेवियर दिखा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, सो दैट्स अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 R2 मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। तो इसका जो होगा वो होगा μ3/v minus μ1/u is equal to ये देखो 3 डिफरेंट मीडियम, वैसे
वैसे देखो एक्चुअली पता क्या, वैसे जो है ना ये फॉर्मूला तुम खुद भी डिराइव कर सकते हो। कैसे? सेम तरीका कि एक बार म्यू1 और म्यू2 लेके कर्व डिफ्रैक्शन को लेके v निकाल लो, उसको v1 का नाम दे दो, और वही v1 को सेकेंड डिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना दो, और सेकेंड वाले में तो म्यू2 और म्यू3 काम करेगा, तो देखो यू कैन डिराइव दिस योरसेल्फ आल्सो। तो ऐसे कुछ नहीं है ना, तो यानी इसमें भी वही हो जाएगा। फर्स्ट डिफ्रैक्शन सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन r1 के लिए, 1 के लिए, है ना, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू2 बाय v1 माइनस म्यू1 बाय u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r1, और रिफ्रैक्शन 2 के लिए क्या हो जाएगा ना, म्यू2 बाय v जो है बन जाएगा म्यू3 बाय v, है ना, और माइनस माइनस इंसिडेंट रेस का हो जाएगा म्यू2, यानी म्यू2 बाय v1 माइनस t, वही अगर t थिकनेस है कायदे से तो ये होना चाहिए, बट देन वो नेग्लेक्ट करके मैं v1 ही लिखूंगा बाद में, which is approximately equal to v1 is equal to म्यू2 माइनस म्यू1 हो जाएगा म्यू3 माइनस म्यू1 by this radius curvature, that is r। अब ऐड करो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, ठीक है, नहीं सर ये तो ठीक है। अच्छा ऐड करके हो सकता है तुम लोग माइनस साइन कहां से ला रहे हो, वो माइनस साइन इसलिए है क्योंकि मैंने इसको म्यू2 माइनस म्यू3 लिखा है, म्यू3 माइनस म्यू2 था, तो मैंने उसको म्यू2 माइनस म्यू3 लिखा है इसलिए माइनस साइन। तो एक्चुअली मैं एक ही तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, वो लाइक दैट इज देयर आर 3 मीडिया। चलो कोई नहीं, अभी बाद में करते हैं इसको, तो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होता है। तो एक चीज तो पता चल गया कि कन्वेक्स और कनकेव कैसे डिसाइड हो रहा है, साइन से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, एटसेट्रा। नाउ यू टेल मी व्हाट वुड हैपन फॉर दिस काइंड ऑफ अ लेंस। इसमें पता है क्या होगा, अगर ये म्यू1 है और ये म्यू2 है मान लो, इसमें क्या होगा, 1 by r1 माइनस 1 by r2 इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे r1 इधर लो r2 इधर लो, चाहे r1 इधर लो r2 इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ऑब्जेक्ट उधर रखो या ऑब्जेक्ट उधर रखो, ये हमेशा नेगेटिव। क्यों? देखो ना, अगर इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है तो r1 नेगेटिव हो गया, और r2 होगा तो पॉजिटिव, लेकिन वो सामने माइनस साइन है, यानी नेगेटिव। अच्छा अगर इधर से इंसिडेंट रे आता है तो ये जो r1 होगा वो नेगेटिव होगा, और उसका r2 पॉजिटिव होगा, लेकिन सामने नेगेटिव साइन है, यानी क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो गया, ये हमेशा नेगेटिव होगा। यानी अब अगर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है ना, अब अगर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है तो ये हमेशा कंटिन्यू होगा, तो देयरफॉर अगर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है यानी हमेशा कंटिन्यू होगा, और अगर म्यू2 लेस देन म्यू1 होगा इन दैट केस हम इसको कन्वेक्स लेंस, it would behave like a convex lens। Now about this, इसका क्या होगा, म्यू1 म्यू, फिर इसका क्या होगा, और फिर इसका क्या होगा, जैसे इसका तो मैंने बता दिया, इसका अगर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 हो तो क्या होगा, ये 2 हो गया, बी हो गया, ए तो हमने डिस्कस कर लिया, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। अब बताओ, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, बाहर का म्यू1 लेंस का म्यू2, इसमें भी लेंस का म्यू2 और बाहर का म्यू1, तो म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 अगर होगा तो क्या, इस केस में भी क्या होगा और इस केस में भी क्या होगा।
तो इसका तो मैंने बता दिया, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 मींस हमेशा कनकेव लेंस होगा। अब इनमें बताओ क्या होगा। सत्यम has asked कि R1 is equal to R2 होगा तो क्या F infinite हो जाएगा? It ought to be, क्योंकि then it will behave almost like a glass slab. समझे ना? It will behave almost like a glass slab. Dhruv has asked कि second का always अच्छा नहीं सॉरी शिवम शिवम ने पूछा, आई थॉट सत्यम ने पूछा, ठीक है। नाउ जय हैज आस्क्ड कि आप बताओ सरफेस किस में आ रहा है ना। पहले काम करो, पहले देखो कि कहीं सरफेस से इंडिपेंडेंट तो नहीं है। जैसे इस केस में हमने तो ये नहीं बोला कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, देखो हमने कुछ नहीं बोला, हमने सीधा बोला कि म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है, यानी कनकेव लेंस होगा, चाहे ऑब्जेक्ट इधर से आए, चाहे इंसिडेंट रे इधर से आए, चाहे इधर से आए। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि इनमें भी ऐसे ही कुछ हो, मैं गेस कर रहा हूँ। आई लीव इट टू यू। यस, सत्यम से इसके सी तो हमेशा कन्वेक्स ही होगा, सी वाला। देखो सी वाले में भी यही होता है कि 1/R1 माइनस 1/R2 हमेशा पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसको लेते हो तो R1 तो इनफाइनाइट हो गया, तो 1/R1 जीरो हो गया, माइनस ऑफ माइनस यानी पॉजिटिव। और अगर इधर लेते हो तो 1/R1 पॉजिटिव हो गया, और ये जीरो है मतलब इनफाइनाइट है, तो 1/∞ जीरो हो गया, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, तो दैट मींस इट इज ऑलवेज कन्वेक्स। कोई डाउट में नहीं हूं कि इधर से करोगे तो उधर हो जाएगा, उधर से करोगे तो ऐसे हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। इसका इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 हो गया, यानी हमेशा करके। क्यों? इंसिडेंट रे इधर से आएगा तो क्या होगा, 1/∞ माइनस 1/R1 सॉरी 1/R2, और वो पॉजिटिव है, R2 पॉजिटिव हो गया, और ये तो इंफिनिटी के टाइम जीरो हो गया, 1/∞, यानी माइनस करके नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, यानी क्या हो गया ना, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 तो हमेशा करके। अच्छा अगर इंसिडेंट रे इधर से आएगा तो 1/R1 नेगेटिव हो जाएगा, और 1/R2 तो जीरो हो जाएगा, यानी ओवरऑल नेगेटिव। यानी इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, 1/R1 माइनस 1/R2 इज ऑलवेज नेगेटिव, और इसमें देखना हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1। और इसमें मुझे ई में बताओ क्या होगा। ओके, ध्रुव से इसकी ई तो कनकेव होगा, मनन से इसकी सी कन्वेक्स, डी कनकेव। ठीक है, समझ गया। वो एक्चुअली में सारा चीजें आके बॉइल डाउन करता है ई में क्या हो। दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, ई में सब लोग बोल रहे हैं कि डिपेंड करता, ठीक है ना। अब ये ई वाला इंटरेस्टिंग है, एक काम करो, ई वाले का एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ, ई वाले का एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आई होप कि उससे खुद ही जज कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़े। दैट इज व्हाट आई एम जजिंग, ठीक है ना, दैट इज व्हाट आई एम गेसिंग। तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक लेंस है, इसका एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर और दूसरा 20 सेंटीमीटर, दो सरफेस है, एक का 40 सेंटीमीटर, एक का 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और अंदर का हो गया सपोज 5/2, इधर का भी 3/2। अगर तीन अलग अलग मीडियम होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा ना, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, अभी हमने वो स्टार्ट भी नहीं किया, दैट वी हैव नॉट स्टार्टेड एज इट। अभी हम लोग एक ही मीडियम में दोनों तरफ वही वाले पे डिस्कशन कर, बस लास्ट लेग ऑफ द डिस्कशन है, बस इसका बता। जय कॉलेज के रेडियस के बारे में और बताना पड़ेगा कि किस तरफ से आया रेज एंड रेडियस एंड ऑल। चलो कोई नहीं, अभी तुमको ऐसा लग रहा है ना, चेक तो करो इसीलिए चेक करो। तभी ताकि ई का कंक्लूजन कर पाएंगे, अभी ई पे इनकंक्लूसिव इट सीम्स।
सब लोग अनडिसाइडेड इट सीम्स। नाउ अक्षित इज आस्क्ड कि ऑब्जेक्ट राइट में है लेफ्ट है। देखो लेंस ऐसे नहीं होता, लेंस में दोनों तरफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। तो अगर तुमको ऐसे लगता है कि इधर ऑब्जेक्ट और उधर ऑब्जेक्ट में फर्क है, तो दैट केस बता दो फिर कि लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे, राइट हैंड साइड से ऐसे, तो बता दो फिर ऐसे। तो यू हैव टू वर्क आउट बोथ द थिंग्स। पहले वर्कआउट तो करो, पहले चेक तो करो। ओके, ध्रुव हैज गिवन द आंसर कि लेफ्ट से कन्वेक्स, राइट से कनकेव। ओके चलो एक चीज ध्यान से सुनो। देखो ये जो मैंने रेडियस दिया ना 40 और 20, ये जो मर्जी नहीं हो सकता, इसको 20 होना पड़ेगा और इसको 40 होना पड़ेगा। क्यों? तो देखो ना, एक ऐसे कर्व है और एक ऐसे है, तो इधर का रेडियस ज्यादा होगा, ये फ्लैटर है, ये ज्यादा कर्व्ड है, इसका मतलब रेडियस कम होगा, और फ्लैटर है मतलब रेडियस ज्यादा होता है, तो देखो ये 40 होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम इसको इंटरचेंज कर पाओगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट ही ऐसा है कि रेडियस के हिसाब से यही बनेगा। चलो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जेक्ट लेता हूं, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, इन दैट केस क्या होगा? Now 1 by f is equal to mu2 minus mu1 by mu1 into 1 by r1 minus वन बाय। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और ये तो 1 आएगा, 5 by 2 1 आ गया, तो 2 by 3 नहीं हो गया, 2 by 3 into 1 by 20 minus 1 by 40 मतलब 1 by 40, ये 20 हो गया, यानी f is equal to 60 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज पॉजिटिव। अब रे को इधर से कर दो, तो अगर रे को इधर से कर दो, ठीक है ना, इन दैट केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑन द राइट, अगर इधर से करते हो तो इन दैट केस क्या होगा? mu2 तो वही है, माइनस mu1 भी वही है, अपॉन mu1 भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 1 by r1। अब ये 1 by r1 जो है माइनस 40 हो गया, क्योंकि रेडियस को इधर है, यानी 1 by माइनस 40 माइनस 1 by माइनस 20, ये भी वही आ रहा है, यानी फिर से f is equal to 60 सेंटीमीटर आ रहा है। Therefore, ये डिपेंड नहीं करता। देखो as long as the medium is same on both sides, तो फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइड, कि ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ऑब्जेक्ट उधर रखा है, तुम्हारे सामने केस डिस्कस हुआ है, एंड सो ऑन। नाउ यू माइट से, ये तो अपने न्यूमेरिकल से हमें बताया, पर हमारे दिमाग में सेंस तो कुछ और काम कर रहा था। ना देखो, मैं वो सेंस को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो R1 R2 का हिसाब समझो। पता क्या हो रहा है इस वाले केस में? चलो अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होगा, देखो हमेशा याद रखना कि अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये R1 हुआ और ये R2 होगा, तो ऐसे केस में 1 by R1 माइनस 1 by R2 जब करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लैटर सरफेस है, तो R2 का वैल्यू बड़ा होगा और R1 का वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि R1 लेस देन R2, तो ये पॉजिटिव होगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड अगर होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ऑन राइट हैंड साइड होगा तो इन दैट केस क्या होगा?
ये R1 है और ये R2 है, ठीक है ना। तो जो 1/R1 माइनस 1/R2 होगा, उसमें R1 कम नेगेटिव है, सॉरी हाँ R1 ज्यादा नेगेटिव है और R2 कम नेगेटिव है और वो डिनोमिनेटर में, तो देयरफॉर इस केस में भी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये चक्कर है, ये चक्कर। तो देयरफॉर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला लेंस हमेशा कन्वेक्स लेंस की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम पता क्या है कि इसके एक सरफेस कनकेव की तरह है और दूसरा सरफेस कन्वेक्स की तरह है, तो हम मिक्स करके पता नहीं क्या बनेगा, तो पता है क्या है ना, ये हमेशा कन्वेक्स होगा। कब? अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 हो तो हमेशा कन्वेक्स, ये इसका नेचर है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखें। हाँ जय, यू आर राइट कि वो रेडियस का इंटरचेंज हो रहा है और वो साइन भी साथ में इंटरचेंज हो रहा है, तो देयरफॉर वो जो 1/R1 माइनस 1/R2 है, तो इधर से करो चाहे इधर से करो, वो न्यूट्रलाइज होकर बराबर हो जाता है, यानी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, ठीक है। इसका 1/R1 माइनस 1/R2 दोनों केस में हमेशा पॉजिटिव आता है, तो दैट्स द नेट रिजल्ट है। चलो ठीक है, तो नाउ वी नो ऑल टाइप्स ऑफ केसेस की कभी कन्वेक्स और कनकेव की तरह बिहेव करते हैं as per the refractive index. बाकी लेंस में क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो मैं बता देता हूँ, इक्वल टू V बाई यू फॉर अ लेंस। मिरर में डिफरेंस क्या था, माइनस V बाई होता है, और कर्व रिफ्रैक्शन में तो अलग ही फॉर्मूला था, V μ1 बाई U μ2 विद अ पॉजिटिव साइन। बाकी साइन कन्वेंशन तो लगता है कि वो U1 U2 वगैरह जो भी है तो वो सब तो साइन लगेगा, ठीक है ना। तो लेंस में V बाई U इज द मैग्निफिकेशन, height of image by height of object, इसमें प्लस है माइनस V। I hope that's clear now. So that was about how to understand what type of lens it is that makes a concave, ठीक है। तो आज हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। रिवाइंड कैसे ना, देखो इस चैप्टर में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट, इन द सेंस कि जनरली इस चैप्टर से एक डेरिवेशन जरूर आता है, चाहे वो लेंस वाला आ जाए, चाहे वो कर्व रिफ्रैक्शन वाला आ जाए, चाहे वो मिरर का आ जाए, चाहे वो कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ रे ऑप्टिक्स, बट सिर्फ डेरिवेशन दैट्स इट, और कुछ नहीं करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंड दैट इज, अगर ये कनकेव मिरर है, इन दैट केस क्या होता है, R इज इक्वल टू 2f। अब इसका प्रूफ ये है कि एक पैरेलल रेस को ले आता हूं, इन दैट केस ये जो है ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये I, ये R, लेकिन मुझे पता है I इज इक्वल टू R, मुझे मालूम। अच्छा ये एंगल्स हम बहुत छोटा लेते हैं भाई, तो ये मान लो हो गया अल्फा, तो ये हो गया बीटा, ठीक है ना, ये चीज। तो देखो ये और ये पैरेलल लाइंस है, तो यानी अल्फा इज इक्वल टू R होगा, सॉरी इज इक्वल टू I होगा, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू I। तो बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस R इज इक्वल टू अल्फा प्लस I इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 2I, सॉरी I क्या, ठीक है ना। देख लो जैसे, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ वाला जो हाइट है इसको मैं ले लेता हूँ सपोज h, तो इस पॉइंट को तो हम फोकल लेंथ बोल रहे हैं, और ये हो गया R, है नहीं। अब मैं इसका फायदा उठाऊंगा, कैसे हो देखो ना, ये जो ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, O A P फॉर पोल और I फॉर सपोज इमेज काइंड ऑफ, या इसको C कह लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन ट्राइंगल ACP है ना, sin alpha is approximately tan alpha
is approximately alpha is equal to कितना होगा h by cp is equal to h by r और इन ट्राइंगल AIP क्या होगा sin beta is approximately tan beta is approximately ठीक है ना बीटा is equal to 2 alpha is equal to क्या होगा h by f यानी अल्फा क्या हो गया h by 2f अल्फा ये भी है अल्फा ये भी है ना एक तो अल्फा ये आ गया 1 2 so therefore alpha is equal to h by r is equal to h by 2f यानी r is equal to 2f तो ये हो गया पहला प्रूफ कि y is the focal length considered to be half the radius या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ ये क्यों माना जाता है तो उसका प्रूफ आ गया ये इसका प्रूफ है ठीक है ना तो ये सब सारे प्रूफ बहुत आसान है मतलब ये कोई कुछ नहीं है मतलब अगर कुछ याद करके ना भी जाओ देखना वो ऑन द स्पॉट बैठ के खुद ही डिसाइड कर सकते बस वो माइंडसेट होना चाहिए मेथोडोलॉजी एक आध बार कभी ना कभी देख के जाना चाहिए तो आई थिंक इट वोंट बी अ प्रॉब्लम बट स्टिल जस्ट मैंने फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूं इट्स अ प्रूफ ऑफ r इज इक्वल टू 2f ठीक है देख लो चलो अब हम करते हैं बस मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ जस्ट इन केस अगर कोई कॉपी कर रहा है तो बस तो आसान है अक्षित आस्क्ड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच अर्लियर आई थिंक शायद शिवम ने भी पूछा था इज दैट कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये बराबर होता है इसका प्रूफ क्या है इंटरेस्टिंगली इसका प्रूफ हम अगले चैप्टर में करेंगे कि उसका ना रे ऑप्टिक्स में कोई वो नहीं है प्रूफ नहीं उसका प्रूफ वेव ऑप्टिक्स में है तो वेव ऑप्टिक्स अगला चैप्टर है तो करेंगे उसको डोंट वरी ठीक है सो अबाउट द फर्स्ट प्रूफ r इज इक्वल टू 2f मैं इन द मीनवाइल सेकंड प्रूफ कर देता हूं और उसके बाद अटेंडेंस भी ले लूंगा सेकंड प्रूफ इज दैट वो ठीक है ना तो उसके लिए क्या है देखो कि ये सपोज मिरर है ये फोकल लेंथ हो गया ये विड्थ हो गया तो ये मान लो ऑब्जेक्ट तो एक रे तो ऐसे जाएंगे पैरेलल और वो फोकस से होके और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हैं या एक आपको इससे इस तरीके से ठीक है तो मैं सूटेबल नाम दे देता हूँ एक तो ये हो गया यू और ये हो गया वी इनका नाम दे दो ओ ये तो चलो सी है ये आई है ये पॉइंट आई हो गया कुछ ए नाम दे दो इसका बी दे दो इसको दे दो बी और इसको बी ठीक तो देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ
तो ये ना अप्रोक्सीमेटली पोल ही माना जाता है। ये जो ट्रायंगल है इसको मैं बीपी लिखूंगा, बिकॉज़ दीस टू पॉइंट्स विल बी वेरी क्लोज। ये बाय डिफॉल्ट असम्पशन है, क्योंकि अपर्चर हम बहुत स्लो ले रहे हैं, सॉरी अपर्चर हम बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं, इस तरीके से। तो इसको एफ मान लेता हूं। तो ट्रायंगल IDF will be similar to triangle BBF। एक्चुअली मैं P और इन दोनों पॉइंट को सेम जैसे मान, यानी ये दोनों पॉइंट को P ही मान अप्रोक्सीमेट, वो सीधा है तो can make it। तो therefore I can say that IF by ID, IF by ID will be similar to PF by PB। That's all। तो वो तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज की बात है, वो तो हो गई है ना। और एक ट्रायंगल ले लेता हूं, और वो है ये वाला भी ले सकता हूं। यानी आईडी IF क्या है, IF हो गया B माइनस F। तो मैं लिख देता हूं IF by ID is equal to PF by PB। यानी IF, तो IF हो जाएगा B माइनस F। ठीक है, B माइनस F by ID। ID is basically height of the image, is equal to PF by PB। तो PF मतलब हो गया फोकल लेंथ by PB is height of object। ठीक है ना। दूसरा जो ट्रायंगल सिमिलर है वो क्या है ना, वी कैन टेक we can also take triangle AFO similar to triangle AFO, तो similar to triangle हो जाएगा EFP। तो इसमें भी देखो OF by AO will be equal to PF by EP। यानी OF by AO will be equal to, यानी इसमें बेसिकली क्या होगा ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V माइनस F by F। ठीक है ना। और ये हो जाएगा OF by AO, तो OF तो हो गया U माइनस F और AO हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू OF की जगह PF by EP। और PF क्या है, PF is also F by EP। EP हो गया हाइट ऑफ इमेज। इन दोनों को इक्वेट करो, अगर इक्वेट करता हूं तो इन दैट केस क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू F by U minus F। तो F by U minus। तो अब ये हो गया तुम्हारा जो है इक्वेशन 1, और ये हो गया मान लो 2। तो वी कैन इक्वेटिंग क्या होता है, V minus F by F is equal to F by U minus F। ठीक है, यानी हो जाएगा UV माइनस UF माइनस VF प्लस F स्क्वायर इज इक्वल टू F। तो F स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब एक काम करो, U भी F से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 1 by F इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, that is 1 by U plus 1 by yeah। But you know what, हम इसको एंड यहाँ पे नहीं करते, हम इसको यहाँ पे ऐसे एंड नहीं करते,
हम लोग पता है कैसे करते हैं, इसके बाद लगाते हैं साइन कन्वेंशन। तो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन लगाओ, चलो लगा अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। अब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, U नेगेटिव, V नेगेटिव और F भी नेगेटिव, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1 बाई माइनस F इज इक्वल टू 1 बाई माइनस U प्लस 1 बाई माइनस। So therefore the equation remains the same. Therefore 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by. Now you might ask a question, जो कि वैलिड क्वेश्चन होगा, दैट इज कि साइन कन्वेंशन क्यों लगाया? क्योंकि जब हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे तब तो फिर साइन कन्वेंशन लगाएंगे, है ना? आंसर इज दैट ये डेलिबरेट है और ये जरूरी है, ठीक है ना? जो बचे हैं उनका एटेंडेंस, तब तक इसको नोट कर लो अभी फिलहाल। चलो ठीक है, देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है इज दैट कि आपने साइन कन्वेंशन क्यों लगाया, है ना? क्योंकि साइन कन्वेंशन हम फिर लगाएंगे, है ना? तो अब सुनो अच्छे से इसका पूरा इतिहास। इतिहास ये है कि जब पहली बार ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ एज ए ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स वगैरह, इन दैट केस पता क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके बियॉन्ड का अलग फॉर्मूला होता था, फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का अलग फॉर्मूला होता था, फोकस से लेके पोल का अलग फॉर्मूला होता था, ठीक है ना? इनफैक्ट ये जो मैंने अभी डिराइव किया ना, ये मैंने डिराइव किया यहाँ का ऑब्जेक्ट लेके। अगर मैं यहाँ का ऑब्जेक्ट लेके डिराइव करूंगा ना तो पता चला उसका फॉर्मूला अलग आ जाता है, आएगा देख वो अपने आप। अब तो समझ आ गया ना कैसे करना है सिमिलर ट्रायंगल लेके। तो ये काम करना, मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं तुम लोग, मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, ये काम करना, इस चीज को डिराइव करो बाय यूजिंग दिस रे डायग्राम। ये फोकस हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लो, तो एक हो गया ऐसे करके यूं जाएगा तो ऐसे, और एक ऐसे रे लेके यूं करके ऐसे, तो ये इमेज आ गई। अब एक काम करना, इसमें भी ऐसे सिमिलर ट्रायंगल लेके हाइट, जैसे इसमें भी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इक्वेट किया दो अलग अलग तरीके से, फिर आपस में इक्वेट किया, ऐसे इसमें भी कर लेना इस वाले।
where object is between pole and focus. देखना ये फॉर्मूला नहीं आएगा, फॉर्मूला अलग आएगा, समझो ना। यानी ये रे ऑप्टिक्स में परेशानी पता क्या है कि अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, और ये करके देखना ना आएगा। अभी आज तो टाइम नहीं है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं, मे भी अगर कल जरूरत पड़े तो मैं करा भी दूं। देखना इसका फॉर्मूला अलग डिराइव हो जाएगा, ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अब प्रॉब्लम समझो, अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं पता चल कर लूंगा कि भाई कौन से रेंज में है, तो मैं एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा दूंगा उस पर्टिकुलर रेंज के लिए। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो मतलब मान लो ऑब्जेक्ट के बारे में दिया नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, अब तुमको पता तो है नहीं कि कौन से रेंज में, तो सबसे पहले ऑप्टिक्स में न्यूटन के जमाने के पहले की बात कर क्या होता था। Now let us assume that the object is between this and this करके मान लिया, सॉल्व कर लिया, उस रीजन के फॉर्मूला अलग होता है, उसको यूज करके सॉल्व कर लिया, पता चला आंसर उस रीजन में आया है, तो हम बोलेंगे क्या, इसको रिजेक्ट कर दो, ये नहीं पॉसिबल नहीं। दूसरा रीजन, वहां का फॉर्मूला यूज करो, वहां पे भी पता चला नहीं आया। तीसरा रीजन, तब तो आना ही है, तीन ही रीजन है, जब आप यूज करो तो पता चला एग्जैक्ट लोकेशन आ गया और उसके हिसाब से फिट भी बैठ फॉर्मूला के हिसाब से और वैल्यूज जो आ रहा। दैट यूज्ड टू बी द प्रोसेस। इस प्रोसेस से छुटकारा मिला जब साइन कन्वेंशन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो देखना तुम ये जो फॉर्मूला डिराइव करोगे, देखना ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, और उसपे साइन कन्वेंशन लगा के देखना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये तो चलो मिरर में हो गया, ऐसे रिफ्रैक्शन में भी होता है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग फॉर्मूला जनरेट होता है, डिराइव होता है। फिर अगर साइन कन्वेंशन लगाते हो तब जाके वो एक जैसा फॉर्मूला बनता है। So that is the importance of sign convention first. तो चलो इसके ऊपर और डिस्कस करूंगा कल, ठीक है ना। तो लाइक वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम में भी, तो अभी जस्ट मैंने इतना इंट्रोड्यूस किया है दैट कि जब तुम फॉर्मूला डिराइव करते हो तो अक्सर क्या होगा, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, ये प्रॉब्लमेटिक है। उस प्रॉब्लम से छुटकारा के लिए या उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ही साइन कन्वेंशन का आइडिया साइंटिस्टों ने यूज किया। But then I'm sure it might be still there in your mind कि क्या मतलब एक बार साइन कन्वेंशन, फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर साइन कन्वेंशन लगा देते हैं, है या नहीं। तो that's the question. I know that question still there with you. So like maybe we can start tomorrow by discussing exactly this aspect. ठीक है, and that is why was sign convention introduced at all. और वो भी अलग अलग, न्यूटन के जमाने में अलग साइन कन्वेंशन होता था और आज के मॉडर्न इरा में अलग साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। But anyway, those are now times which are past. I think like what we are now going to do is modern sign convention only. हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ मॉडर्न या कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। चलो we'll discuss tomorrow the rest of the things. But yes, it's a query कि साइन कन्वेंशन क्यों इंट्रोड्यूस किया, and that is what we are going to discuss tomorrow, right? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Okay, have a good day. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir.